Okay, so LLP Act revision for June 2020, CA Foundation candidates and CS and CMA. Okay, now of course LLP we had started in last class. In last class when we started with LLP, I told you that what is an LLP? Why is it formed? I had categorically mentioned LLP is a way of doing business in which partners are coming together, but they do not have mutual agency. They do not have mutual agency. They're agents of the LLP. They're agents of the LLP, but they do not have mutual, you know, agency between them. Then I started by saying that LLP is a hybrid kind of a enterprise or hybrid kind of an organization. Why the word hybrid? Hybrid because it has features of a company as well as that of a partnership. यानी कि LLP मिक्स है पार्टनरशिप एंड कंपनी का. कुछ कैरेक्टर्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स LLP का पार्टनरशिप जैसा है, जैसे कि पार्टनर्स, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंपनी के तरह. एंड व्हाई इज LLP a very preferred vehicle of doing business? Why? erstwhile जो पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहता था वो अभी LLP बनाना चाहता है. Why is that? Why is LLP so preferred? In fact, I told you, companies, private limited companies also are switching and converting themselves to LLP. The reason is very evident. One of the students, Shopnil, is saying limited liability. Of course, limited liability is one of the reason. So the reason is LLP is very cost friendly way of doing business. Why? A company has got more number of compliances. एक कंपनी को ज्यादातर compliance करना पड़ता है. LLP से ढेर ज्यादा compliances LLP को करना पड़ता है. Sorry, कंपनी से LLP से ढेर ज्यादा compliances LLP को कंपनी को करना पड़ता है. LLP से ढेर सारा compliances, यानी कि अगर 10 compliance LLP को करना पड़ेगा तो 20 कंप्लायंस कंपनी को करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ लीगल कंप्लायंसेस, नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज घट जाएगा, तो कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, हर चीज बच जाएगा. और LLP भी लिमिटेड लायबिलिटी है और कंपनी भी लिमिटेड लायबिलिटी है, हालांकि पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी है. तो समझ में आ रहा है? तो पार्टनरशिप से LLP मूव करने में फायदा है या नहीं है? हाँ है. इनफैक्ट कंपनी से भी LLP मूव करने पे फायदा है. और LLP का ये जो रूप है, इस रूप में बिजनेस करना पॉसिबल हुआ जब LLP का कानून लाया गया इंडिया में 2008 में, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, LLP Act 2008. Is the background very clear now, making sense? Okay. Now, this is a small history of the LLP Act which I have covered in the last class. 81 sections and 4 schedules. All, the 3 schedules deal with conversion of LLP, other forms of business to LLP. And the first schedule is all about what? First schedule is mutual rights and duties of partners. Just a small recap. The ministry which governs the LLP Act is the Ministry of Corporate Affairs, which is the same ministry which is concerned with governance of Companies Act 2013. Okay. Then LLP meaning and concept में समझाया था, फीचर्स समझाया था, कुछ डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे. उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर लेके कुछ कहना था, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर लेके मैं वॉइस नोट छोड़ दिया था ग्रुप में. मैं यही वॉइस नोट छोड़ा था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम 2 होना चाहिए और इंडिविजुअल्स होना चाहिए. They must be individuals because they will take decision. Company cannot take decision. So if the LLP is formed by 2 companies, can 2 companies be partners at LLP? Yes. ठीक है. So but अगर designated 2 ही कंपनी LLP फॉर्म किया तो 2 ही कंपनी को designated partner भी बनना पड़ेगा. But company is a non-individual, so company will have to nominate someone to become the designated partner from among its directors or members. Got it? So that was the idea, and one of the designated partners need to be in India.
that is be a resident of India, and the definition of resident is any person who resides in India 182 days or above. For this, okay, all right. Then I had spoken about minimum number of partners in an LLP. मैं बहुत अच्छे से समझाया था कि मिनिमम तो 2 ही रहेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, there's no limit. Okay, then I had explained you the meaning of the word body corporate, perpetual succession, common seal and foreign LLP. if you recall, foreign LLP का concept companies act में भी आप लोग देखेंगे या देख चुके हैं, you know, foreign companies. Okay, then incorporation मैं समझाया था 3 forms है, form 1 2 3, and you know, then we had started we were about to start the other portions in the form of this, जो आज कवर होगा एक्स्ट्रा पोर्शंस का क्लास में. ओके, सो मीनवाइल जो लोग अभी ज्वाइन किए, और भी लोग ज्वाइन करेंगे, बट जो लोग अभी तक ज्वाइन किए उन लोग के लिए कुछ मिस नहीं हुआ. मैं जस्ट रिवीजन खत्म किया, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ विद टुडेज मेन पोर्शन जो कि एक्स्ट्रा पोर्शन. ओके, नाउ सर मेरे को एक चीज बताइए, ये सेक्शन 22 क्या बोल रहा है? सेक्शन 22, हर एक सेक्शन को मैं थोड़ा बहुत रीडिंग करके पढ़ा दूंगा, बिकॉज यही जो प्रिपरेशन होगा ये आखिरी प्रिपरेशन मानो एलएलपी के लिए. फिर एग्जाम के पहले देखने से हो जाएगा. हाँ, घर में एक बार पढ़ना पड़ेगा. मैं पढ़ाने के बाद घर में एक बार कोई पढ़ लिया, उसके बाद एग्जाम के पहले देखने से काफी है. ओके, तो सर एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज सेक्शन 22. व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स? ये सेम चीज है, यानी कि on the incorporation of LLP, persons who subscribe their names to the incorporation document. Now, what is the incorporation document? The form 1, the form 2, the form 3, जो आप लोग देखे थे, वो forms में ही incorporation document भी था. Shall be its partners, shall be its partners. तो जिसका नाम लेके, जिसका जो इंडिविजुअल्स या जो पर्सन्स का नाम लेके, persons could be individuals or non-individuals, because partners could be individual or non-individual. So जो persons का नाम लेके incorporation document में आप अप्लाई किए थे incorporate करने के लिए LLP को, वही व्यक्ति लोग को पार्टनर माना जाएगा. एंड उसके बाद LLP incorporate हो जाने के बाद any other person may become a partner by an accordance with the LLP agreement. So who is a partner at a LLP? While incorporation, the names of the persons who subscribe their names, or the persons who subscribe their names to the incorporation document में लिखा है कि LLP will be formed by an agreement between Mr. X and Mr. Y. So Mr. X and Y will become the partners of the LLP and will be considered the partners of the LLP. So that is what it is saying, as simple as that. Okay. Now, sir, relationship of partners क्या है section 23? एकदम आसान है, ये भी एकदम आसान है. ये बोल रहा है कि जो आपका पार्टनर्स के बीच म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रहेगा, यानी कि रिश्ता रहेगा, ये पार्टनरशिप में भी पढ़े थे. तो ये म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP and the mutual rights and duties of a LLP and its partners, LLP और partners के बीच and partners के बीच जो रिश्ता रहेगा, वो रिश्ता कहां से अराइज करेगा? कौन बड़ा होता है, एक्ट या एग्रीमेंट? एग्रीमेंट. मैं हमेशा पार्टनरशिप का क्लास में वैसे ही पढ़ाया, कंपैरिजन करके एक्ट और एग्रीमेंट का, जाके आप लोग को समझ में आए और दिखे. कोई भी पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट के बीच, कॉन्ट्रैक्ट लॉज, कमर्शियल लॉज, यही तो सब पढ़ रहे हैं हम लोग सीए बनने के लिए. कोई भी पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स जब होता है, कोई भी पार्टनर्स के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है, तो सबसे पहले देखा जाता है एग्रीमेंट में क्या कहा गया है, क्या उन लोग का आपस में उन लोग का क्या तय हुआ है. सो दैट विल बी गवर्न बाय द LLP. अब वही चीज पहला लाइन में लिखा गया है. अब बोला LLP agreement and any changes if any made therein shall be filed with the registrar. अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट में भी ये पढ़ाया था. पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो वो चेंज को हम लोग को
रजिस्टर्ड फर्म के लिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाके दर्ज कराना पड़ता है। एलएलपी के लिए रजिस्ट्रार कौन है मालूम है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वही रजिस्ट्रार एलएलपी के लिए भी है, बिकॉज एलएलपी इज ऑल्सो अ कॉर्पोरेट। ओके, तो फी पे करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कोई भी चेंज होगा तो आपको दर्ज कराना पड़ेगा। An agreement in writing made before incorporation of LLP between the persons who subscribe their names. सर ये क्या? नंबर थ्री is saying, मेरे साथ पढ़ो जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते थे, तब जाके पूरा क्लियर हो जाएगा। जिन लोग का हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी खोल के रखो, साथ में कॉपी भी खोल के रखो जहां पे नोट लेते रहोगे, या हार्ड कॉपी ऑफ द बुक में ही लिख लेना। तो an agreement in writing made before the incorporation of a LLP between the persons and who subscribe their names to the incorporation may impose obligations on LLP, provided such agreement is ratified by all the partners after incorporation of LLP। इसका मतलब क्या है? अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, बहुत इजी मैथमेटिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और लॉजिक का चीज पूछ रहा हूँ। The thing is, what I am asking a very simple question based on logical, sequencing or chronology, date wise जो sequence होता है। Okay, the question is, मैं अगर LLP फॉर्म करना चाहता हूँ, to form an LLP मेरे को फॉर्म 1, ई फॉर्म 1, 2, 3 का दरकार है, ये लास्ट पढ़े थे। ई फॉर्म 1 is fixation of the name, ई फॉर्म 2 is incorporation form, and E form 3 is execution of the LLP agreement. So what I am asking is very simple. 1, 2, 3 तो सीक्वेंस में ही होगा। ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये पॉइंट नंबर 3 ऑफ सेक्शन 23। सेक्शन 23 में जो बोला जा रहा है वो कुछ ऐसा है, वो लोग बोल रहे हैं कि आप अगर LLP फॉर्म कर लिए, LLP फॉर्म करने के लिए आपको LLP एग्रीमेंट बनाना पड़ा। तो स्टेप 1 इज LLP एग्रीमेंट बनाना। सर आप बनाए हो LLP एग्रीमेंट क्लाइंट्स के लिए? हाँ, LLP एग्रीमेंट बनाना। तो LLP एग्रीमेंट मैं बना दिया, क्लाइंट पढ़ लिया, अब बोला आप फाइल कर दीजिए और हम लोग का LLP इनकॉर्पोरेट करा दीजिए। तो मैं फाइलिंग कर दिया LLP के लिए फॉर्म 1, फॉर्म 2 के साथ ही LLP एग्रीमेंट गया, ठीक है ना? तो ये जो LLP एग्रीमेंट है ये तो बना है बिफोर इनकॉर्पोरेशन या आफ्टर इनकॉर्पोरेशन? Before incorporation it has been drafted and prepared. Now think of it, before incorporation जो चीज हम लोग बनाए, ड्राफ्ट किए, इनकॉर्पोरेशन हो जाने के बाद उसको वैलिड रखने के लिए उसको एग्जीक्यूट कराना है, तभी तो ये फॉर्म 3 हम लोग लेते हैं। देखो, once incorporation is done we must file agreement with the registrar within 30 days। यानी कि इनकॉर्पोरेशन के बाद भी एग्रीमेंट लगेगा और पहले भी एग्रीमेंट लगेगा, और ये जो पहले एग्रीमेंट बन चुका है उस पे बेस करके हम लोग इनकॉर्पोरेशन फॉर्म भरे, फॉर्म 2, एंड उसके बाद इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम लोग को वापस इस डीड को या एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कराना पड़ा, स्टैंपिंग वगैरह करके, एंड वापस रजिस्ट्रार के पास वो देना पड़ा। तो यही चीज बोला जा रहा है अदर वर्ड्स में। अब देखो, अब आसान लगेगा। Ratified का मतलब है subsequent approval. The word ratification in law means subsequent approval. So they are saying prior या before incorporation जो LLP agreement बना, जहां पे obligations on the LLP may impose obligations on the LLP, provided such agreement is ratified by all the partners and incorporation after incorporation of LLP। तो वही बोल रहे हैं, LLP का जो ऑब्लिगेशंस है वो कैसे तय होता है? एग्रीमेंट के जरिए। कि एग्रीमेंट अगर इनकॉर्पोरेशन के पहले बना लिए, उसके बाद हम लोग रैटिफाई कर दिया एग्रीमेंट में जो लिखा है, मतलब वापस अप्रूवल दे दिया, हाँ ये सही है, तो उसके बाद LLP विल बी ऑब्लाइज्ड। उसके पहले LLP ऑब्लाइज कैसे होगा? इनकॉर्पोरेशन के पहले। इनकॉर्पोरेशन के पहले तो LLP है ही नहीं, यही चीज बोल रहा है। और यही चीज को कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है जब ये लॉजिकल सीक्वेंस लोग सोचते नहीं है, लोग समझ ही नहीं पाता है क्या बोल रहा है। बिफोर इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, LLP इज नॉट देयर।
LLP's existence comes after incorporation. So what we have written in the agreement before incorporation of the LLP, will it bind the LLP? No. It can only bind the LLP once the LLP is incorporated and after that it is ratified. ठीक है, बहुत अच्छा मूड में पढ़ा रहा था, नया नया स्टूडेंट अभी आ रहा है वेटिंग रूम में और तंग कर रहे वंशिका. I don't know why. Anyway. Okay. Now, in the absence of number 4 is saying, in the absence of agreement as to any matter, in the absence of, once again, such a irritating. Okay, I'm sorry. The waiting room में कोई रहता है तो वो मेरा सिस्टम में दिखा रहा है तो मेरे को वापस एडमिट करना पड़ रहा है और एडमिट नहीं हो रहा है शायद. I don't know. Anyway, so in the absence, point number 4, I'm reading out. Please, let's focus. In the absence of agreement as to any matter, the mutual rights and duties of partners and the mutual rights and duties of LLP. ना देख के बताओ, ये देखने का दरकार नहीं है. सर आप तो दिखा दिए, फिर बोल रहे हो देखने का दरकार नहीं है. हाँ, अभी बोल रहे हो देखने का दरकार नहीं है क्योंकि तुम लोग को पता है. मैं फ्लो में पड़ गया. मैं पूछने वाला था कि अगर LLP अग्रीमेंट में कुछ बात लिखा ना हो, in the absence of certain rights and duties about partners and LLP inter se among themselves, in the absence of anything written on it, agreement अगर कोई बात का जिक्र नहीं किया तो वो बात कैसे रेफर होगा, कैसे सला होगा उस बात का, अग्रीमेंट से या एक्ट से? एक्ट से, ऑफ कोर्स एक्ट से. हम लोग पढ़े थे पार्टनरशिप में भी, जो बात अग्रीमेंट में नहीं लिखा रहता है उसके लिए कौन रहता है? एक्ट. वेरी गुड सुमन, एक्ट. तो एक्ट जो रहता है, एक्ट में याद करो 4 शेड्यूल एंड 81 सेक्शन है LLP एक्ट में. ठीक है, कानून को बहुत अच्छे से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि कोई जो भी पूछे फाड़ के बोल दोगे ऑर्डर में. तो 81 सेक्शंस और 4 शेड्यूल्स में भी क्या बात होता है ये भी आप लोग को पढ़ा चुका हूं. याद करो 4 शेड्यूल्स में शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. तो इसीलिए पॉइंट नंबर 4 क्या बोलेगा, अभी घबराओ मत, देखो कितना आसान लगेगा हर चीज. बोला है कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर, mutual rights and duties of partners will be of the LLP and the partners shall be determined by the provisions relating to that matter as are set out in the first schedule. Okay, clear? All right. Now जिसको भी जो समझ में नहीं आएगा मेरे को चैट में पूछना, गुस्सा नहीं करूंगा. ठीक है, और गुस्सा कर भी नहीं पाऊंगा, ऑनलाइन क्या गुस्सा कर लूंगा. ठीक है, डरो मत. नाउ सेसेशन यहां तक क्लियर है आई होप. सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट. सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप, सर सेसेशन का मतलब क्या है? सेसेशन मतलब खत्म. पार्टनरशिप इंटरेस्ट कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा उसके बारे में अब दिया हुआ है. आसान चीज है बट थोड़ा लेंदी करके दिया हुआ है, तो एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा. ठीक है, जल्दी से बोला है, they have said that a person may cease to be a partner in accordance of LLP in accordance with the agreement with the other partners or in the absence of the agreement by giving a notice in writing of not less than 30 days to the other partners of his intention to resign as a partner. तो दो चीज बोला है. सेक्शन 24 बहुत शॉर्ट में मैं कुछ चीज लिखा दे रहा हूं, तुम लोग भी लिख सकते हो. सेसेशन ऑफ अ पार्टनर दो तरीके से हो सकता है, 2 ways. अच्छा, पहले व्हाट इज सेसेशन ऑफ पार्टनर, वो तो लिख लूं, नहीं तो याद नहीं रहेगा. सेसेशन ऑफ पार्टनर मींस व्हेन अ पार्टनर wants to resign.
ठीक है, so that is cessation of a partner. Now in two manners, it can be done in two manners. सर कौन सा दो तरीके से हो सकता है, प्रैक्टिकली बात कीजिए, बताइए स्टोरी। दो तरीके से हो सकता है प्रैक्टिकली, सोच लो। एक है अगर एलएलपी एग्रीमेंट में पहले ही लिखा था कि व्हेन द पार्टनर अटेन्स द एज ऑफ 40, काफी देरी है, व्हेन द पार्टनर अटेन्स द एज ऑफ 40 ही विल रिजाइन, पहले से लिखा था, ठीक है। और या फिर मैं 40 के पहले ही रिटायर करना चाहता हूं, 30s में रिटायर करना चाहता हूं, तो फिर मैं, ये तो लिखा नहीं है एग्रीमेंट में, मैं खुद ही रेजिग्नेशन दे दूंगा, कोई थोड़ी ना रोक सकता है, मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगा। और रिजाइन करने के लिए तरीका क्या है, 30 दिन का नोटिस। कानून बोल रहा है, ये तो एलएलपी में लिखा नहीं है, सॉरी एग्रीमेंट में लिखा नहीं है, तो कानून बोल रहा है कि अगर तुम खुद से रिजाइन कर रहे हो तो एटलीस्ट 30 दिन का उनको नोटिस दे दो, जाके वो संभाल पाए, ठीक है। पार्टनर रिटायर करेगा तो बहुत कुछ हिसाब वगैरह होगा, पैसा जाएगा एलएलपी से, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि दो तरीके से हो सकता है एज पर एग्रीमेंट, तरीका 1 एलएलपी एग्रीमेंट, और एज पर, और ही में voluntarily resign by giving 30 दिन का नोटिस, 30 दिन का नोटिस इन राइटिंग ऑफ कोर्स। हाँ सर, ये तो पार्टनरशिप में भी पढ़े थे, क्लियर है। तो दीज आर द टू वेज हाउ अ पार्टनरशिप इंटरेस्ट कैन cess or sorry cease, and you know how a partner can come out. So a person may cease to be a partner of a LLP in accordance with an agreement with the other partners or in absence of agreement, you know, by giving a notice in writing of not less than 30 days. 30 days के ज्यादा तुम नोटिस दे सकते हो, बट 20 दिन का नोटिस देके नहीं कर पाओगे। Not less than 30 days to the other partners of his intention to resign as a partner, ठीक है। अच्छा बोलो, ये दो तरीका नहीं हुआ, एक पार्टनर, कोई और पार्टनर, मेरा एग्जांपल नहीं, कोई और पार्टनर मर गया, ठीक है। तो बोलो कोई पार्टनर मर जाने से क्या वो पार्टनर रह पाएगा या सेसेशन हो जाएगा वो भी? हाँ, देखो, अ पार्टनर शैल सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी ऑन हिज डेथ, ऑफ कोर्स सर, नहीं तो उसका भूत क्या आत्मा रहेगा क्या? नहीं, ठीक है, ऑन हिज डेथ ceases to be a partner. Dissolution of LLP, of course LLP डिसॉल्व कर गया तो वो कैसे पार्टनर रहेगा? LLP नहीं है तो किस चीज का पार्टनर? If he is declared to be unsound mind, अच्छा खो बैठा, लॉस्ट स्टेट, कोरोना में घर में बैठ के पागल हो गया, तो बोलो if he is declared to be of unsound mind, तो फिर ऑफ कोर्स अनसाउंड माइंड वो खुद से बोलने से नहीं होगा, कोर्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, और कोर्ट भी ऐसे नहीं बोलेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देख के बोलेगा, ठीक है। तो यही चीज इमेजिन करना है, यही लैंग्वेज लिखना है। देखो कितना सुंदर लैंग्वेज है। मैं कभी कभार लैंग्वेज में भी आकर्षण करूंगा, लैंग्वेज की तरफ आपका ध्यान, अटेंशन। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज कैसे लिखते हैं आंसर आप लोग जब पूछते हो, मैं यही सब बोलता हूँ। देखो आंसर लिखते वक्त तुमको लिखना पड़ेगा इफ ही इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, बोल के बहुत लोग पेन बंद कर देगा, वही पे लाइन खत्म नहीं। उसके बाद अनसाउंड माइंड बाय हुम, अ कॉम्पिटेंट को, तब तो कॉम्प्लीटनेस आएगा आंसर में, और यही कॉम्प्लीटनेस चाहिए आंसर में। ये कॉम्प्लीटनेस तुम भाषा को चेंज करके भी ला सकते हो, बट कॉम्प्लीट होना चाहिए आंसर। वही मैं बोलता हूँ, हाउ टू राइट आंसर में मैं वही बात बोलता हूँ, क्लियर है? ओके सर, और इफ ही हैज अप्लाइड टू बी एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट, तो तीन चीज हाईलाइट कर सकते हो जो लोग हाईलाइटर लेके बैठे हो, ठीक है। एक है, नंबर 1 इज डेथ और डिसोल्यूशन, नंबर 2 इज अनसाउंड माइंड, ये याद रखने से ही तुम लिख लोगे, और इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो ये तीन चीज भी सीज कर देगा पर्सन को टू बी अ पार्टनर, क्लियर है?
ओके, नाउ नाउ सर बताइए कि आगे क्या है। आगे बहुत आसान चीज है, हर चीज ऐसे ही आसान लगेगा आज, ठीक है। When a person has ceases to be a partner, उसको जब एक पर्सन पार्टनर नहीं रहेगा तब उसको क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, उसको फॉर्मर पार्टनर कहेंगे। देखो फॉर्मर पार्टनर, फॉर्मर पार्टनर, सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मर पार्टनर। जो पहले पार्टनर था अभी पार्टनर नहीं है, ये तो सबको पता है। हम लोग टीनेज में, तुम लोग टीनेज में ज्यादातर हो, टीनेजर लोग क्या बोलते हैं, एक्स, उसका एक्स, इसका एक्स, उसका वाई। तो एक्स का मतलब फॉर्मर, तो यहाँ पे पार्टनर अगर नहीं रहा तो क्या बन गया, फॉर्मर पार्टनर। एक्स पार्टनर भी बोलते हैं लैंग्वेज में, मतलब रेगुलर यूज वाला वोकैब में। द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड in relation to any person dealing with LLP as still being a partner of the LLP, ठीक है। द फॉर्मर पार्टनर, ये लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थॉट और कॉन्सेप्ट नया है तुम लोग के लिए। क्या बोल रहे हैं देखो, अच्छा बोलने से पहले मैं, पूरा नया नहीं है, बोलने से पहले, दिखाने से पहले एक चीज रिकलेक्ट कराना चाहता हूँ। आप लोग मेरे को सहायता करना, चैट में लिखना अगर आंसर याद आ गया। एक पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म का बात बोल रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, पार्टनरशिप एक्ट मैं खुद पढ़ाया लाइव। पार्टनरशिप एक्ट में हम लोग पढ़े थे ना, एक पार्टनर जब रिटायर करता है उसका लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज इन रेस्पेक्ट ऑफ द फर्म ceases or it continues till he serves public notice. I want an answer in chat. It continues or ceases? एक पार्टनर जब रिटायर करता है, एक्टिव पार्टनर, तब उसका लायबिलिटी for the acts of the firm continues till public notice or ceases on the date of retirement? Continues till public notice. Very good. Continues, बहुत लोग लिखा, thank you, बस समझ में आ गया, इतना जन लिख दिया मतलब समझ में आ गया, well done. So the idea is it continues to be liable. The partner who retires continues to be liable unless he gives a public notice. यानी कि भाई तुम चुपके से एलएलपी का पार्टनर नहीं रहे और किसी को बताया नहीं, बट सबको पता था तुम पार्टनर हो, तुम ऐसा कर सकते हो, ये तो धोखा हो जाएगा ना, है ना। मैं चुपके से निकल गया, किसी को बताया नहीं कि चलो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, लेट्स से किसी को नहीं बताया और सब मेरा बात सोच के लेट्स से ज्वाइन कर लिया कोई कोर्स कहीं पे, तो ये तो धोखा हो जाएगा, ये धोखा हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि पब्लिक नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर कभी भी रिटायर करता है, जाके पब्लिक को पता रहे इंफॉर्मेशन। ओके, तो सर ये बताइए फंडा, हाँ यही बोला है देखो कि अगर पॉइंट नंबर 3 में लिखा था, पॉइंट नंबर 3, where a partner has ceased to be a partner of a LLP, former partner, the former partner is to be regarded as still being a partner unless the person has notice. अगर पर्सन को पता है कि he is no more a partner, या फिर पर्सन को पता नहीं भी है, चलो फॉर्मर पार्टनर किसको किसको बताएगा, पूरा गांव को थोड़ी ना बता पाएगा। फॉर्मर पार्टनर नोटिस दे दिया रजिस्ट्रार को कि मैं फॉर्मर पार्टनर बन गया, मैं छोड़ दिया एलएलपी, तो रजिस्ट्रार को नोटिस है या एक व्यक्ति को नोटिस है, वैसा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अगर रजिस्ट्रार को नोटिस है तब नहीं कह पाएगा ये फॉर्मर पार्टनर लायबल है। द फॉर्मर पार्टनर विल बी अब्सॉल्व्ड, रिलीज फ्रॉम एनी लायबिलिटी। क्लियर है। तो एक पार्टनर जब फॉर्मर पार्टनर बनता है यानी कि ceases to be a partner, then he has to give notice. Once again the concept of public notice, same पार्टनरशिप में जो पढ़े। क्लियर है। मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, देखो सब सेम ही लिखा हुआ है, मैं यही बोल रहा था ऑफ कोर्स, बट मैं समझाऊंगा। ओके, सो दिस इज द फंडा। हाईलाइट कर लो सब लोग, पब्लिक नोटिस बगल में लिख लो, नोट कर लो, हर चीज खुद से करते जाओ। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन नोट नहीं कर रहे हैं, तुम नोट नहीं कर रहे हो, नोट करो। ओके, अरे नोट करो, ठीक है, हाँ ओके, डरा रहा हूँ, ठीक है। नाउ नाउ लेट्स कम टू द fourth point. Okay, the fourth point, what is the fourth point sir? Fourth point कुछ ऐसा है, the cessation of a partner
from LLP does not by itself discharge the partner from any obligation to the LLP. Very important point. सोचो, दिमाग में ही है तुम लोग का. LLP के तरफ या LLP towards the LLP, if the partner is obliged to the LLP, then that obligation does not come to an end simply when he, decides to be not to a partner. या फिर दूसरा पार्टनर्स के लिए, या फिर दूसरा व्यक्तियों के लिए जो पार्टनर लायबल था, वो पार्टनर अगर कल छोड़ देता है, उसका जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज और एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस था वो खत्म नहीं होगा. वही बात बोल रहा है, एग्जिस्टिंग लायबिलिटी और एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस while he was a partner जो था वो रह जाएगा. Of course, till the date of cessation, he will be liable for all the acts done. Clear है? तो ये वही सेम चीज है. Where a partner, point number 5, ceases to be a partner unless otherwise provided in the LLP agreement. यानी कि कैसे अपना रेजिग्नेशन देके 30 दिन का नोटिस. There, in that case, बोल रहे, the former partner or a person entitled to his share in consequence of death or insolvency, अच्छा former partner या फिर उसका लीगल हेयर जिसको डेथ या इंसॉल्वेंसी में मिलेगा LLP से उसका शेयर, shall be entitled to receive from the LLP what? क्या मिलेगा? ना देख के ही तुम लोग बोल सकते हो. तुम लोग सम्स करते हो ना अकाउंट्स में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का बहुत अच्छे से. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का सम्स में हम लोग क्या हिसाब लगाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं. क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए उसका कैपिटल जो था एट शेयर ऑफ प्रॉफिट सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, ठीक है ना, बाय प्रॉफिट, ठीक है, पीएल एप्रो जो भी बोलते हो, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट करते हैं, लॉस हुआ तो, ठीक है ना. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर जोड़ना बाकी है तो वो जोड़ देते हैं. पार्टनर्स लोन अगर कुछ लिया हुआ था तो उसको ऐड कर देते हैं अगर अनपेड है, ठीक है. ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो क्लोजिंग कैपिटल रहता है, जो क्लोजिंग कैपिटल रहता है, कोई ड्राइंग्स हुआ है तो ड्राइंग्स को डेबिट कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में. वो क्लोजिंग कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, देते हैं ना. तो वही चीज बोला है. मैं तो एकदम डिटेल में समझा भी दिया क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, कॉम्प्रिहेंसिव. So an amount equal to the capital contribution of the former partner actually made to the LLP and his right to share accumulated profits of the LLP after deduction of accumulated loss, if any, of course, determined as the date former partner ceased to be a partner. Act से ज्यादा accounts का knowledge लेके हम लोग पढ़ लिए ये सब. A former partner is entitled to his share in consequence of death or insolvency of the former partner shall not have any right to interfere in the management of the LLP. अब देखो, मेरे को बताओ, ये लाइन पढ़ने का दरकार नहीं है. ये मतलब मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, ये सब लाइन तुम लोग को पता था, इसीलिए बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ, ये लाइन पढ़ने का दरकार नहीं. ऐसे तो पढ़ोगे, पर मैं बोल रहा हूँ खुद से पढ़ने भी समझ में आ जाता है. देख लेते हैं कैसे, ना देख के एक बार सोचते हैं. मेरे को तुम लोग बताओ, मिस्टर एक्स LLP छोड़ दिया, मिस्टर एक्स LLP छोड़ दिया, रिजाइन कर गया. मिस्टर एक्स खुद अब LLP छोड़ने के बाद क्या कोई भी मैनेजमेंट में हिस्सा ले पाएगा? नहीं. एक बार फॉर्मर पार्टनर बनने के बाद नहीं ले पाएगा. लेट्स से मिस्टर एक्स मर गया, तब भी तो वो फॉर्मर पार्टनर. अब मिस्टर एक्स मरने के बाद उसका लीगल हेयर है, लेट्स से मिस्टर एक्स का जूनियर एक्स इज हिज सन और डॉटर. नाउ जूनियर एक्स क्या हिस्सा ले पाएगा? नहीं. वही बात बोला है पॉइंट नंबर 6, you cannot take part in the management of the LLP once you have become a former partner या death or insolvency में तुम्हारा legal है. Clear है? Registration of changes in partner section 25 से मैं continue करूंगा. I will have to share a new login ID because वो 40 minutes expire हो रहे हैं. लास्ट में भी हुआ, ठीक है. So in a minute तुम लोग WhatsApp में देखो, अभी तुरंत मिलेगा. वहां से वापस new login ID से ज्वाइन करो with a new session. See you soon.